Hello everyone, TMPS online classes welcome you all here. Today I am going to start chapter 8 and the poetry name is The Patriot by Robert Browning. First of all, I would like to explain a bit about the poet Robert Browning. Robert Browning has started writing poetry at very early stage, very early age, and Robert Browning was a son of very wealthy and cultured family, and Robert Browning is a very much famous poet of modern English poetry. So let's start the poetry with the first stanza. So first of all, bit explanation I would like to give you about the poetry The Patriot. Actually, here the speaker is a patriot. He is talking about the destiny of the person, how destiny gets changed overnight and how it works. When you are going to do something good, everybody is there to accompany you, and if by mistake or when your stars are not in your favor and you have done anything bad, you have committed any mistake, then how people misbehave and how our destiny gets changed overnight. So let's begin with the poem. Poem is The Patriot. It was roses, roses all the way. The household seemed to heave and sway. The child spies flamed such flags they had a year ago on this very day. Here in this poem, in this stanza, the speaker, the patriot is Deshbhakt. Patriot is speaking about his warm welcome. वो अपने warm welcome की बात बता रहे कि जब उन्होंने देशभक्ति के जरिए कुछ एक अच्छा काम किया अपने कंट्री के लिए, कंट्रीमैन के लिए, बहुत गुड डीड्स उन्होंने किए थे, और उसके बाद जब वो वापस अपनी कंट्री के लिए लौटे, हाउ पीपल वर वर्शिपिंग, how people were doing warm welcome for him. Everyone was very much enthusiastic to see the glance of that patriot, and everybody has decorated his house for his warm welcome. लोगों ने उनके warm welcome के लिए patriot की बहुत ज़्यादा decoration की. His path was strewn with flowers. उनके रास्ते में हर जगह फूल ही फूल थे, और जो चर्च थे वहाँ पे उस पे विक्ट्री बेल्स थी, विक्ट्री बेल्स और विक्ट्री फ्लैग्स बहुत ज़्यादा हैंगिंग थे, और वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड, क्यूरियस थे उस पैट्रियट का एक ग्लांस देखने के लिए. Now, the air breaks into a mist with bells. The old voice rocketed with the crowding cries. Had I said, good for mere noise rebels, but give me your son from yonder sky. They had answered, and afterward, what else? Here, in the second stanza, poet is saying that whole atmosphere of the country was very much overwhelmed me. यहाँ पैट्रियट ने बोला कि जो कंट्री का उस टाइम एटमॉस्फेयर था उसने मुझे इतना ज़्यादा ओवरवेल्म किया, इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि हर जगह चर्च बेल्स बज रहे थे. मीन्स वेरी स्वीट मेलोडियस साउंड ऑफ बेल्स, बट चर्च बेल्स बज रहे थे, एंड पीपल वर डांसिंग. एंड जस्ट अ ईयर अगो, he's saying it was just a year ago it all happened. The crowd surged with joy. जितना वहाँ पे भीड़ थी लोगों की, वो मुझे देखने के लिए एक्साइटेड थी, वो सब खुशी से मुझे देखने के लिए पागल थे. और यहाँ पर जो पैट्रियट है वो लोगों के एंथुजियाज्म को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है कि इतना ज़्यादा एंथुजियाज्म लोगों में मैंने कभी देखा नहीं था जितना उस दिन उसके वेलकम के लिए पीपल वर गैदरिंग. सो मीन्स पैट्रियट इज जस्ट अज्यूमिंग कि आई फेल्ट, मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम
कि अगर मैं कुछ इम्पॉसिबल चीज भी लोगों से मांगता हूँ तो दे विल नेवर से नो, कि वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे। वो जितनी भी इम्पॉसिबल चीजें होंगी, इवन सन एंड स्काई का भी अगर मैं डिमांड करूं तो वो वहां पे मुझे देने के लिए रेडी है, मुझे देने के लिए तैयार है। And now stanza 3 is, Alas, it was I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep. Not man could do, have I felt left undone, and you see my harvest, what I reap. This very day, now a year is run. In the third stanza, the speaker is saying that patriot is trying to do the impossible for the pleasure of admirers. कि स्पीकर ने कहा, पैट्रियट ने कहा कि मैंने अपनी हर तरीके की कोशिशें की, जो मेरे कंट्रीमैन हैं उनको खुश करने के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए मैंने सब कुछ अच्छे से अच्छा किया, और जितने भी इम्पॉसिबिलिटीज थी सबको पॉसिबल किया इस ग्रेट विक्ट्री को हासिल करने के लिए। एंड he did whatever he could do, जो वो कर सकता था, जितना वो कर सकता था, he did. And now he himself is asking, now speaker is asking to himself कि आखिर मुझे क्या मिला, उसके बदले में what I have got, this is the reward what I have got means and you see my harvest. स्पीकर इज सेइंग कि आप मेरे अच्छे गुड डीड्स को आप मेरे देखिए कि क्या ये मुझे मिला जो मैंने अच्छे से अच्छे लोगों के लिए किया। पैट्रियट फील्स दैट पीपल हैव फॉरगॉटन, यहाँ पे स्पीकर इज सेइंग कि पीपल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, लोग सब कुछ अब भूल चुके हैं जो भी मैंने अपने कंट्री और कंट्रीमैन के लिए किया। ही इज सेइंग अलाक इट वाज आई हु लीव द सन। Speaker is saying that Allah leave the sun means कि काश मैं उस समय लोगों से सन एंड स्काई का भी डिमांड करता तो वो भी मुझे मिल जाता। Now stanza 4 is, there is nobody on the housetops now, just a palsied few at the windows set. For the best of the sight is all the shingles gate, or better yet, by the very scaffolds to type through. Now in this stanza, speaker patriot is feeling hurt, बहुत hurt feel कर रहा है वो अपने आप में, and he is saying that कि जब उसको गैलोस की ओर ले जाया जा रहा है, गैलोस is where people are hung to death, where people are forced to cut their hands and head, that is gallows. In typical that Hindi, that is kasai khana is gallows. Speaker is saying कि आज जब मुझे गैलोस की ओर लेके जाया जा रहा है, आज कोई मुझे छत से देखने वाला नहीं है कि अपने हाउस रूफ टॉप से कोई मुझे देखे और कोई मेरा साथ दे इस आज के इस रेनी डे में। नो वन इज देयर, नो वन इज पीपिंग आउटसाइड टू सी माई ग्लैंस, ओनली फ्यू पैरालाइज्ड पीपल आर देयर। बस कुछ ही पैरालाइज्ड पीपल हैं जो मुझे खिड़की पे बैठ के देख रहे हैं, अदरवाइज कोई भी मुझे देखने के लिए या मेरी हेल्प करने के लिए नहीं है। Most of the people have gone to the Shambles gate or are quite near the scaffold to have the best view of his execution. जो भी वहाँ के लोग हैं वो सब अंदर हैं और जो उसको देख भी रहे हैं, they are looking at him at very humiliating eyes. So no one is there to look at him or to accompany him. Now, stanza 5 is, I go in the rain and mow the needs. A rope cuts both my wrists behind, and I think by the field my forehead bleeds for the fame. Whoever has a mind stones at me for my ears with sting.
1 साल बाद आज मैंने अगर थोड़ा सा भी काम किया, स्पीकर फील कर रहा है कि कुछ भी मुझसे अगर गलत हो गया, व्हेन माय डेस्टिनी वाज नॉट इन माय फेवर, आज मैंने थोड़ा सा भी कुछ गलत काम किया, आई गो इन द रेन, तो आज मैं बारिश में गैलोस की ओर जा रहा हूँ, भीगता हुआ जा रहा हूँ, मुसीबत में हूँ, देन नोबडी इज देयर टू हेल्प मी आउट। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे उसके जो स्पीकर है उसके दोनों हाथों को बांध दिया गया एक रोप से, एक रस्सी से, मोटी रस्सी से, एंड ही वॉज टाइट, वेरी टाइटली, बहुत टाइटली उसके हाथों को बांध दिया गया कि उसके दोनों हाथ कट गए, एंड पीपल वर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन हिम व्हाइल ही वॉज कमिंग टू द गैलोस। लोग उसके ऊपर स्टोन्स फेंक रहे थे जब वो गैलोस की ओर आ रहा था, जिससे कि उसके फोरहेड से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, फोरहेड ब्लीड कर रहा था, हाथ कट गए थे, बट स्टिल नो वन वॉज देयर टू केयर अबाउट हिम। नाउ हियर मीन्स ही सेइंग कि दिस इज द आयरनी ऑफ द पीपल, कि अब ये आयरनी मैं लोगों की देख रहा हूँ कि अच्छे काम जब किए थे तो सब थे वहां पर, he has got the company of everyone, now today nobody is there. Now in last stanza, thus I entered and thus I go in trends, people have dropped down it, paid by the world, what does thou owe me? God might question on state this, God shall repay, I am safer so. Now here in last stanza, a speaker, that patriot is consoling himself, अपने आप को कंसोल करते हुए बोल रहे हैं कि आज मेरे साथ कोई नहीं है, बट आई बिलीव, आई ट्रस्ट दैट गॉड विल डेफिनेटली हेल्प मी। इफ ऑन अर्थ टुडे नोबडी इज अकम्पनिंग मी, बट इन हेवन आई विल गेट माई जस्टिफिकेशन। यहाँ पर आज मेरा साथ, मुझे न्याय देने के लिए कोई नहीं है, मीन्स इवन पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट माई गुड डीड्स which was done a year back, and everybody is humiliating me of my misdeed. Now here at last, speaker of the patriot is saying कि आज मुझे यहाँ पर अगर नहीं जस्टिफिकेशन मिल रहा है तो मुझे हेवन में जरूर मिलेगा, क्योंकि वो अपने आप को भगवान के बहुत करीब फील कर रहा है पैट्रियट, कि मैं भगवान के बहुत करीब हूँ और मुझे पता है कि मुझे हेवन में जरूर जस्टिस मिलेगा और वहां पर मैं हमेशा सेफ रहूंगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट द पैट्रियट। थैंक यू वेरी मच।